Hello everyone. In the last video we discussed what is statistics, what is the basic definition of statistics, what are the advantages and limitations of statistics. In this video we will discuss the types of data collection, that is primary data and secondary data, what are the different types of statistics, that is descriptive, inferential and analytical. I'm Megha Khathuria. Welcome you all to my YouTube channel. Let's discuss all these topics in the video. So the first topic we need to study today is types of data collection. What are the two types of data collection? The two types of data collection are primary data and secondary data. Now, first let us understand what is primary data. Primary data is the original data. Primary data एक original data होता है जब for the first time collect कर रहे हैं. Whereas secondary data is reused data जो already किसी ने collect किया हुआ है and you are just taking the data from the book, magazine और newspaper और आप अपनी रिसर्च में या अपने सर्वे में या आप जो भी चीज करना चाह रहे हो आप उसमें यूज करते हैं. सो लेट्स स्टडी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. प्राइमरी डेटा इज द ओरिजिनल डेटा और यूनिक डेटा. एज आई सेड अर्लियर, प्राइमरी डेटा आप फॉर द फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं और जो चीज आप फर्स्ट टाइम के लिए कलेक्ट कर रहे हैं तो वो यूनिक तो होगी ही. सो इट इज एन ओरिजिनल डेटा और अ यूनिक डेटा कलेक्टेड बाय यू. Whereas secondary data is not the original data and it is not unique क्योंकि वो already कोई collect कर चुका होता है और आप बस अपने research में उसको reuse कर रहे हैं. What is the second difference between primary data and secondary data? The second difference is it is collected by the researcher and investigator. Now the question arises, who is a researcher or investigator? Can you guess? Yes, you are right. इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर एक ऐसा पर्सन जो घर घर जाके या एरिया टू एरिया जाके अपने रिसर्च के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है तो उसको हम रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर कहते हैं. एंड इट इज नॉट कलेक्टेड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ. ये रिसर्चर खुद से कलेक्ट नहीं करता, ये ऑलरेडी डेटा कलेक्टेड होता है, बस उसको रीयूज किया जाता है. व्हाट इज, कैन यू गेस कि अगर हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमें कॉस्टली होगा या हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो कॉस्टली होगा? यस, यू आर राइट. प्राइमरी डेटा इज मोर कॉस्टली एज कंपेयर टू सेकेंडरी डेटा क्योंकि उसमें मोर टाइम, मोर एफर्ट्स लगेंगे, इसलिए दैट विल बी मोर कॉस्टली. वेयर सेकेंडरी डेटा इज इकोनॉमिकल और लेस कॉस्टली क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, हमें बस यूज करना है, तो देर आर नो एफर्ट्स. There are less efforts involved. What is the next difference? It takes more. It is more costly. It takes more time as compared to secondary data क्योंकि वो original data है. Next difference is the types. How can we collect a primary data? We can collect a primary data by observation and by interview. Let's take an example of observation. If you want to observe how a student behaves when he is stressed या एग्जाम से पहले कोई स्टूडेंट कैसे बिहेव करता है, what will you do? You will observe his habits, you will observe how he behaves, how he studies, how he sits, how he eats. तो ये डेटा आप ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट करते हैं और आप खुद से कलेक्ट कर रहे हैं तो इट विल बी अ प्राइमरी डेटा. इट कैनॉट बी कॉल्ड एज अ सेकेंडरी डेटा. सेकेंड इज द इंटरव्यू. आप बहुत सारे मॉल्स में जाते हैं और शॉप्स में जाते हैं, वहां पे आपसे आफ्टर सेल्स इंटरव्यू लेते हैं, मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं. वो डेटा प्राइमरी डेटा होता है. वो बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि हमारे कस्टमर्स को हमारी सर्विस कैसी लगी. Whereas what is the difference what is the example of secondary data? लाइब्रेरी बुक्स. बहुत सारे लाइब्रेरी बुक्स में बहुत सारे डेटास पब्लिश हो रखे होते हैं, जर्नल्स में, magazines में and newspapers में. So you can get secondary data from there. The last and the most important difference between primary data and secondary data is primary data is more reliable as compared to secondary data. Why this so? Why is primary data more reliable than secondary data? Yes, you are right. प्राइमरी डेटा आप अपने अकॉर्डिंग कलेक्ट कर रहे हैं, आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी पॉपुलेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं, अपने सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं. तो प्राइमरी डेटा में वही पीपल इंक्लूड होंगे जिनको आपको सर्वे करना है, जिनको आपको ऑब्जर्व करना है, जिनसे आपको इंटरव्यू लेना है.
तो ये आपका खुद का डेटा है और ये मोर रिलायबल होगा, वेयर सेकेंडरी डेटा इज ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स। यू नेवर नो कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है, कि वो सच में कलेक्ट हुआ था या नहीं हुआ था, या उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो रियल है कि नहीं है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। The statistics can be described into three types, that is descriptive, inferential and analytical. So first we will discuss what is descriptive statistics. When a researcher uses a data about a group which is already collected, जब कोई रिसर्चर कोई भी डेटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड है किसी भी ग्रुप के बारे में उसको यूज कर रहा है, वी आर यूजिंग द डेटा विच इज ऑलरेडी कलेक्टेड. व्हेन अ रिसर्चर यूजेस कलेक्टेड डेटा अबाउट अ ग्रुप. अब वो डेटा क्यों कलेक्ट कर रहा है? डेटा को कलेक्ट कर रहा है टू डिस्क्राइब. अब वो डिस्क्राइब किसको करेगा? डिस्क्राइब करेगा उस ग्रुप को. तो जो रिसर्चर ने डेटा कलेक्ट करा है किसी भी ग्रुप के बारे में, वो डेटा यूज हो रहा है टू डिस्क्राइब द ग्रुप और टू रीच अ कंक्लूजन. तो उसको हम बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. हाउ कैन यू रिमेंबर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स? डी फॉर डिस्क्राइब एंड डी फॉर डिस्क्रिप्टिव. तो आपको लर्न करना इजी हो जाएगा. What are the examples of descriptive statistics? The example of descriptive statistics can be average, skewness, and kurtosis. Now, what is average, skewness, and kurtosis? We will discuss all these in the upcoming classes. The second type is inferential statistics. What is inferential statistics? When a researcher uses a sample to conclude about the population, it is called inferential statistics. When a researcher uses a sample, यहाँ पे sample and population term को समझना जरूरी है. When a researcher uses a sample to conclude about the population, now here population is a larger term whereas sample is a smaller term. Population is a big term. जो भी हम लास्ट क्लास में हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था, जिस भी चीज के बारे में हमें डेटा कलेक्ट करना होता है वो हमारा यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहलाता है. एंड हम पॉपुलेशन में से सबका डेटा तो नहीं कलेक्ट कर सकते. फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू स्टडी कि कितनी वुमेन है हु आर ग्रेजुएटेड. हमारे इंडिया में कितनी वुमेन है हु आर ग्रेजुएटेड. तो हम पूरी इंडिया में जितने भी वुमेन है उनके पास जाके डेटा तो नहीं कलेक्ट कर सकते. तो हम उसमें से अपना एक सैंपल चूज करेंगे. सैंपल इज अ सबसेट. एक छोटा सेट होता है अपनी पॉपुलेशन का जो हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है. तो हम अब क्या करेंगे, हम सिर्फ दिल्ली की या साउथ दिल्ली की 100-200 जितनी भी हमें वुमेन का डेटा कलेक्ट करना है वो कलेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि कितनी उनमें से जो वुमेन है दे आर ग्रेजुएटेड. तो वो हमारा सैंपल कहलाएगा और वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा. उसके बेसिस पे हम पूरा कंक्लूजन निकालेंगे और हम अपने पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूड करेंगे. तो ऐसा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? वी यूज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इन टी टेस्ट and Z test. Now what is T test and Z test? The same we will study in the next classes. Our last type of statistics is analytical statistics. Now what is analytical statistics? Analytical statistics is used to describe the relationship between two variables. किन्हीं दो variables की relationship के बारे में describe करता है हमारा analytical statistics between two variables. अब कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें हम दो वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करते हैं? इट इज कोरिलेशन. कोरिलेशन बताता है कि दो वेरिएबल्स कितने कोरिलेटेड हैं. एंड अनदर इज रिग्रेशन. कोरिलेशन, रिग्रेशन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट.
skewness and kurtosis, ये सब हम अपनी आगे वाली videos में cover करेंगे. This was all about our today's video. Please feel free to comment in the comment section down below if you have any queries, and do hit the subscribe button and the share with the videos with your friends, and let them know about the statistics course which is going on our YouTube channel. And the next video will be about the qualitative and quantitative data. What is nominal, ordinal, interval and ratio. I'll be coming up with more videos and I'll explain you the types of statistics and all the topics in the statistics. So don't forget to share the video with your friends, and do hit the subscribe button. I'll see you in my next video.